Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. So it is our lab number 6. Before the lab number 6, we have performed the following experiments. Introduction to MATLAB commands and which are used in the database processings and various functions. Then simple basic functions to read and to display images. We have also covered if you want to display various images in a single figure. Then third is to display and read the grayscale image in the MATLAB. Fourth, to write a program for the histogram calculation and the equalization process. Then last that you all have completed, that is the to write and execute programs for the image arithmetic operations, addition, subtraction, calculation, mean value of image different brightness by changing the mean value, etc. So now you have to complete the experiment from 1 to 5. And in the last lab, I have informed all the students that you have to submit. So how many students have completed the experiment file? How many students have completed the task? Sir, one is remaining. Okay, now another student, any other students? Sir, the theory part of last experiment is remaining. Okay. Now you can see, I think I have posted in the chat box in the previous labs how to write an experiment. That includes the object, the requirements, the theory parts, the MATLAB code, then the outputs, and last one, the comments. And in the last, you have to add one assignment or tutorial. So up to 5 experiments, you all have to submit in the upcoming lab. और इन द नेक्स्ट लैब आपकी जो नेक्स्ट लैब होगी वो होगी आपकी 10th ऑफ सितंबर, नो 9th ऑफ सितंबर। तो आपको ये सबमिट करना है और उसमें 2 एक्सपेरिमेंट और ऐड करना है। उसको आप टाइटल देंगे 5, हम इसी सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है उसमें आप एक्सपेरिमेंट ऐड करेंगे, उसको आप 5, इसको 5A मानकर चलेंगे, उसको आप 5B मानेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे जो मैंने आपको लास्ट लैब में बताया था, इंटेंसिटी रिजोल्यूशन, ओके, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन बताया था आपको लैब में। हेलो, यस और नो? Yes, sir. Okay, so you have to add these 2 experiment also, है ना, after the experiment number 5। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। Then we have to perform some logical operations, okay, between images, and these includes various logical operations like AND gate, AND operation, NAND operation, OR operation, and etc. I have taken here only 2, but you have to perform all the experiments. So I am closing this one because just I want to show that I have shown this using MATLAB in the previous lab. Okay, so you have to write one more experiment after this experiment number 5. You can write it is 5A and that is 5B for the spatial and intensity resolution. So I am closing this one.
as well as this one. Okay. Okay. Now in the theory class I have covered the arithmetic operations, and during that I have given one assignment. So how many students have completed that one? कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? Okay. So are you interested to continue the arithmetic operation which I have covered in the theory part? So are you interested to continue that in the lab part also using MATLAB? If yes, then I can demonstrate the experiment using arithmetic operations here. I have given assignment in the theory lecture that you have to create X image by image for 4 cross 4 matrix. Then you have to perform the various arithmetic operation. तो आपको करना है अभी ये आपको और इसमें सीखना है क्या? इसमें जरूरत है क्या आपको? सर मैंने सबट्रैक्शन वाला ट्राई किया था बट वो हो नहीं रहा था, तो आप एक बार डिस्कस कर लेंगे? ओके, नो प्रॉब्लम। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन कंप्लीट किए हैं आपके थ्योरी पार्ट में, है ना, वो मेरे पास में मैंने पीडीएफ ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पर। क्या हम उसको मैटलैब में यहाँ करना चाहते हैं? यदि है तो आप बताएं, मैं फटाफट उसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो आपको शायद हेल्प मिले आगे। सर कर लेते हैं। ओके, सो मैं सबसे पहले आई एम एड एडिशन का ले रहा हूँ एग्जाम्पल, और मेरे पास में इसका बना हुआ कोड भी अवेलेबल है, ठीक है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टली यूजिंग दैट कोड। ओके, मेरे पास में मैं उस मटेरियल को यूज कर रहा हूँ जो मटेरियल आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें सारी चीजें दी हुई है मटेरियल में। यस, आपका जो मैटलैब टूल है उसमें आपके कम से कम 2 या 3 पीडीएफ रहते हैं mathworks.com में। एक होता है इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स, जिसमें सारे फंक्शंस दिए रहते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं तो आपके पास में ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आई थिंक आई हैव शेयर्ड द कंप्लीट स्क्रीन। इज इट विजिबल? Yes, sir. So you can take the help if you want to use various functions, or if you want to learn about the various image processing functions. Okay, मैं पहली लैब में आपको ये कवर कर चुका हूँ, बट अगेन अब आपको ये आपको याद दिला रहा हूँ इस पीडीएफ को दिखाकर कि सब कुछ मटेरियल जो है ना हम सब अवेलेबल रहता है, हमको जरूरत होती है उसको यूज करने का तरीके की। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि इसमें एक यूजर गाइड दी हुई है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब सारी चीजें दी हुई है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, इमेज का सेगमेंटेशन करना है तो कैसे करना है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, है ना। कोड भी है, एग्जांपल्स भी है, एक्सप्लेनेशंस भी है, सब कुछ है। यहाँ से आप खुद के एक्सपेरिमेंट भी बना सकते हैं, दो स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद दिस इन दिस फील्ड, ठीक है। थर्ड मेरे पास में ये है एक और कि आप इमेज प्रोसेसिंग टूल में जो इमेजेस या जो भी एक्सपेरिमेंट आपने लिए हैं वो कहीं से लिए होंगे रेफरेंस के लिए, तो वो वाली फाइल मैंने यहाँ ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। ये है आपका पेज नंबर 1149। इसमें आपके 3276 पेजेस हैं। ये मटेरियल आप चाहें तो आप इफ यू वांट तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज यू कैन आल्सो डाउनलोड इट नाउ। ओके, आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी हेल्प ले सकते हैं।
जैसे एग्जांपल के लिए आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, रेड का अलग हो, ग्रीन का अलग हो, ब्लू का अलग हो, तो ये भी आप कर सकते हैं, है ना। रीजन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, बताया था उस दिन भी, अभी शायद ये नहीं बताया होगा, यहाँ पर नहीं पहुंचे। ठीक है, नाउ दिस इज द मैटलैब न्यू स्क्रिप्ट। Okay, new script. Now this is the function that is IMAD बोल सकते हैं, IMAD, add two images or add constant to image, ये function है आपका। तो directly I am taking this one। okay? पहले वाला आप उससे फेमिलियर होंगे। अब आप देखें, इसको मैं यदि रन करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, तो आपके पास में वर्क स्पेस में एक वेरिएबल आएगा x। ओके, ये आपके पास में वेरिएबल हो गया 2x3 का मैट्रिक्स बना। ये आपके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आपके सेकेंड रो में एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो है ना, मैंने यहाँ लिया है, इसको कॉपी करके यहाँ सेमीकोलन ऐड किया, यहाँ मैंने एक और प्लस कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी इसको और प्लस कर दिया। अब क्या होगा, मैंने फिर से x को रन किया। अब आप x को देखेंगे तो आपके पास में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है ना। हो गया, अच्छा यहाँ पर ये हटाया नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पैरेलली। यस, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट, आई हैव नॉट डिलीटेड। now check it। okay, so I have created here this array। okay, it is of 3x3, so these are the elements, am I right? Now similarly if I run this one, check it। okay, this is the second one, no, this is a y। okay, these are the values। yes, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब एक एलिमेंट लिखते हैं या एक नंबर टाइप करते हैं, एक स्पेस देते हैं, आप दूसरा टाइप करते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर तीसरा टाइप करते हैं, तो बीच में स्पेस देना मतलब आप उनको एक रो में ले रहे हो, सॉरी कॉलम में ले रहे हो। और यदि आप सेमीकोलन वहां यदि आप लगाते हो तो वहां से आपकी वो सेकेंड रो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आपके एक कॉलम में रहेंगे एलिमेंट्स, फिर आपने एक सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाने के बाद में आपकी एक थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अब हमारे पास में फंक्शन है दिस वन, आई एम ऐड किया, तो आपके पास में इसको हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यस, सो आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस वन, इज इट विजिबल? दिस Z, it is a matrix of 3x3। now see the result, first element is 255, last is the 200। you can also see this is the 100 and this is again 100। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको? अभिषेक, साहिल, उदित, बेटा क्लास में यदि आपने ज्वाइन किया है तो आपको प्रेजेंट रहना है। ठीक है, मैं ये पार्ट स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर हमने इस तरीके से टाइप किया है लेकिन दिखाई कैसे देता है, तो उसके लिए यहाँ आपके पास में वर्क स्पेस है, क्लिक ऑन दिस एक्स, सी दिस वन, आप देख सकते हैं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 255, 0, 75, ये आपके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आ गए। आप यहाँ पर देखेंगे ये सेकेंड रो के एलिमेंट है, यहाँ पर देखेंगे ये थर्ड रो के एलिमेंट है।
क्लियर? Yes, sir. सॉरी. Okay. Now this is the sorry. Add two images and specify the output class. तो हम जस्ट सिंपल ऐड करेंगे. ऑलरेडी मैं ये एग्जांपल ले चुका हूँ. मैं यहाँ पर एक नया क्रिएट करूंगा. इसको हम ठीक है. ये आपका आउटपुट रिजल्ट आ गया है यहाँ पर. आपने एक इमेज तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैंने यहाँ क्लिक किया और एडिटर विंडो में ओके इसको रन किया. सो इसमें क्या होगा, पैरेलली आपके साथ साइड में एक स्पेस होगा और उस स्पेस में करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी इमेज है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी. ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ लाइव एडिटर. ओके. आपने इसमें देखा है कि डायरेक्ट आपने के को शो किया है ना. यदि आप चाह रहे हैं कि आई एम शो आई भी करना है, यदि आपको कैमरामैन भी करना है, यदि आपको, तो आपका क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा. अब इसको रन करने के बाद देखते क्या आता है. तो अब आपको दिखाई दिया कुछ और? हेलो. यस सर. सो आप देखेंगे राइट साइड में पहला आपने imread rise.png को लोड किया और आपने imshow i किया, तो ये आपके पास में पहला इमेज आया दिस वन. सेकंड इमेज आपने imread cameraman.tif किया, इसको किया आपने imshow, सेकंड आया. थर्ड आपने एक फंक्शन ऐड किया imadd और imadd,
आप इन दोनों इमेज को ऐड करेंगे। उसके बाद में आपने k को किया शो, तो ये दिस इज द एडिशन ऑफ दिस टू। ठीक है, तो एट द सेम प्लेस यू कैन सी हियर द इनपुट इमेज 1, input image 2 and the addition of these two input images. At the same time you can also see this one. When I move the cursor on this k, then here you see that k it is equals to 256 by 256 and the first element is 278. Okay, now check whether this 278 it is the sum of the first element of I1 and I2. So check. Okay, this is the I elements for I. So what is the value of first element? It is 122. Yes, any student in the class who is listening me? Yes, sir. Okay, it is 128. So now listen, I will ask. You have to add. Please add it. It is 122. Now check for this j. It is 156. So 122 plus 156. 278. 270. It is 278. So आंसर क्या होना चाहिए इनका एडिशन में? 278. Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो रहा है अवेलेबल? 278. क्लियर है ये? Yes, sir. सो हमने ये चेक कर लिया है कि आप यदि किसी इमेज, यहाँ पर आप देखेंगे ये शॉर्ट में दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ ही मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर कुछ ही वैल्यूज हैं। तो आप इसको k को फुल देखना चाहते हो तो क्लिक ऑन दिस k इन द वर्क स्पेस। दीज आर द वैल्यूज। ओके, आप चाहें तो इन वैल्यूज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। और यहाँ पर ऑप्शंस भी आते हैं, या तो आप कॉपी करें या आपके पास में दूसरा ऑप्शन है इंजेक्ट रो। नो, यहाँ से पेस्ट एक्सेल डेटा, नो, तो इसको पोर्ट करना है। ओके, जस्ट कॉपी करते हैं ना। कॉपी करने के बाद में इस डेटा को हम या तो एक्सेल शीट में ही ले लें। मान लीजिए एक्सेल शीट हमने यहाँ क्रिएट किया है, ऑलरेडी मेरे पास एक एक्सेल शीट ओपन है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर डेटा इसी में रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। सो दिखाई दे रहा है आपको? हेलो? Yes, sir. So these are the values. Yes, sir. So these are the values 256 row and 256 columns की। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, आपके पास में जो इमेज है, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एडिशन की। एक इमेज आपकी 1 है, इमेज आपकी 2 है और ये एडिशन है। तो जब आप इसी इमेज की जब बात करते हैं तो हम इस इमेज में जो वैल्यू है ना, ये पिक्सल की जो वैल्यू है ना, इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पर हम कुछ फीचर्स कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये जितनी भी वैल्यूज है ना, इनका हम एंट्रोपी निकाल लेते हैं या मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, या वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, या एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, या कुछ और प्रॉपर्टीज रहती हैं, कुछ मोमेंट्स फीचर्स रहते हैं। तो उसी के बेसिस पर फिर हम इसका यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिसीज, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज और फॉर द मैचिंग पर्पस एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल आई हैव टेकन फ्रॉम हियर। नाउ सपोज in the cell, this is my output. Now I want to add, I am add 50 to this output. इसको मैं J नहीं दूंगा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ KL, it is capital L. I am add
into which parameter? Into k parameter. What is the quantity? This is 50. 50 की जगह मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 90. ओके, क्लियर है? अब आप यहाँ पर ये जो है इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी के बाद में अनडू का ऑप्शन आता है या नहीं देखता हूँ. आ रहा है अनडू का ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको टाइप करता. ठीक है, तो समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? सो अभी आपके पास में इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3 है. अब आपके पास में इमेज 4 भी आएगी. कैसे आएगी देखिए आप. ये हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन को हम रन करेंगे. रन द सेक्शन. नाउ सी input 1, input 2, this is the addition. Now see this image and this image. In this image I have added a constant number that is 90. Now see the effect here. Now I am adding not 90, suppose I am adding 200. Then see the effect. I am only running this part only. सर आई एम शो में के कर रहे हैं शो. Yes. सर आई एम शो में सर के है सर, उसको एल कर. हाँ वही सेम आ रहा है यार. के हियर आई दिस वन आई एम सो के. यस, के होना चाहिए आपका एल. गुड. इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं. देखिए आप लोग ना यदि लैब में आप ज्वाइन किए हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन ना करें प्लीज, सीखने के लिए ज्वाइन करें. तो इस सेक्शन को हम क्या करेंगे, रन करते हैं. रन द सेक्शन. नाउ सी द इफेक्ट. आपको दिखाई दे रहा है कुछ इफेक्ट? कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. यहाँ इस पार्टिकुलर एरिया की बात करेंगे और इस पार्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके कंपैरिजन में ये सेकंड इमेज में ना ये वाइट ज्यादा है. या राइस की देख लीजिए तो ज्यादा वाइट दिख रहे हैं. या उसको और कर लेते हैं, 200 की जगह इसको हम कर देते हैं 400. अब देखते हैं क्या होता है. ठीक है, मेरा पर्पज यहाँ बताने का सिर्फ ये है कि आप कांस्टेंट नंबर से भी आप ऐड कर सकते हैं किसी भी इमेज में. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि वो आपका या तो डार्क होगा या ब्राइट होगा. सो ये एडिशन वाला अपना कवर हो गया. जैसा कि यहाँ इन्होंने बताया है, यहाँ पर इन्होंने 58 किया था इस राइस वाली इमेज में. तो 58 करने के बाद में ये इस तरीके का इमेज आया था आपका आउटपुट में. ये से द राइस आर मोर वाइट एंड हियर इफ this part is black in this image but it is towards white, it is not more black as compared to the first one. Okay, yes, clear. yes यस. अब आपको एक और अच्छी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको. जैसा अभी मैंने आपको जो कवर किया वो था आपका एडिशन वाला पार्ट. एडिशन वाला आई एम एड दिस वन है ना. ऐड वाला ये वाला कंप्लीट किया मैंने आपके साथ में. अब जब इस ट्यूटोरियल में आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे सी आल्सो. और यहाँ पर जब आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे और किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आती है अभी तो वो यहाँ से हेल्प ले सकता है. ये आपका सिंटेक्स होता है, डिस्क्रिप्शन होता है. तो एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल्स दे हैव गिवन. तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये सारी चीजें. नाउ सी आल्सो दिस. अब मुझे एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है. तो मेरे पास में आई एम सब्ट्रैक्ट. यहाँ पर मेरा हैंड आया, जैसे कर्सर को मूव किया, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं कहाँ चला गया, आई एम सब्ट्रैक्ट. दिखाई दे रहा है आपको?
बोलते नहीं है आप यस सर। यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली जो भी मैंने लिखा हुआ है उसमें यदि मैं आई एम सब्ट्रैक्ट यदि मैं यूज करता हूँ, ठीक है, आई एम सब्ट्रैक्ट यदि मैं यूज करता हूँ तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट ये दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। ये वाला जो है इसमें यदि आप सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं, डेट में यहाँ पर आप आई एम एड को रिप्लेस करते हैं बाय आई एम सब्ट्रैक्ट और इस वाले पार्ट को डिलीट करते हैं और इसको आप करते हैं क्या, कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ जो भी प्रोग्राम या जो भी कोड लिखा है उसमें जिसके सामने कमेंट लिखा हुआ है तो वो आपकी कोड की लाइन नहीं रहेगी, वो कमेंट रहेगा ओनली, जस्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मुझे यहाँ लिखना है इट इज नॉट यूज, तो इस तरीके से ये रन नहीं होगा। नाउ सी आई हैव सिलेक्टेड दिस पार्ट एंड रन। सो आई एम सब्ट्रैक्ट के बाद में आप देखेंगे 255 माइनस 50 कितना होना चाहिए आपका आंसर? हेलो 205. ओके 205 ओके 205। सिमिलरली जीरो से आप 50 सेपरेट करेंगे तो क्या होना चाहिए आपका, जीरो। क्लास में बताया है। और यहाँ 100 माइनस 100 क्या होना चाहिए, जीरो। तो वो चीज आपके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। आप चाहें तो वो चीज यहाँ भी चेक कर सकते हैं जेड में, ठीक है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके, नाउ सेकंड I am taking the same example for the subtraction of rice and PNG. वर्क स्पेस भी आपका क्लियर हो जाएगा। This is the output. Now run this. Subtraction. So is it visible? This is the image I rice.png again. Cameraman second image. No, this is the real I am subtract. ठीक है, और सेकंड वाले में आपने उसको और -50 और -40 और कर दिया। यदि आप -40 की जगह यदि आप सॉरी 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए क्या इफेक्ट होगा। दिस इज द रिजल्ट।
हेलो, यस सर। मतलब ये है कि जो नॉट प्योर वाइट बट इट इज टू बार्स वाइट इज, तो उसमें आप यदि -100 करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू कम होगा, तो वो टू बार्स ब्लैक जाएगा। यदि आप इसको -100 की जगह 200 यदि करते हैं तो आप देखिए क्या इफेक्ट होगा, सीधा इमेज टोटल ब्लैक। इसका मतलब क्या है कि सभी की वैल्यूज का जो सब्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव में आया होगा या जीरो आया होगा। तो जीरो या नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल डार्क हो जाएगा। यस, क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अब मैं 40 के लिए करके दिखा रहा हूँ आपको ये इफेक्ट रहेगा। सो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया है आपका। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। आई एम कॉम्प्लीमेंट है, आई एम डिवाइड है, आई एम लिम, आई एम मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पर हम जाएंगे। तो ये आपके पास में इमेजेस हैं, इन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। क्या हम इन दोनों इमेज को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या हम दोनों इमेज को मल्टीप्लाई, जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर? यस सर, कर। करके देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे, है ना। ठीक है, तो अगेन मैंने सेम इमेज लिए हैं यहाँ पर सॉरी, मैंने अपना वर्क स्पेस, कमांड विंडो सब क्लियर कर दिया, कोई भी फिगर ऊपर नहीं है। इसको मैं रन करूंगा। प्योर वाइट आ गया यार हमको तो हमारा। ठीक है, कोड तो रन हो गया, कोड को रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अब के को चेक कर लें यहाँ पर क्या वैल्यूज है। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ? हेलो, आपको दिखाई दे रही है वैल्यूज? यस। यस सर। सभी की वैल्यू 255 है। इसका मतलब सभी की प्रोडक्ट जो है ना, इमेज 1 और इमेज 2 का जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 255 आ रहा है, तो उन्होंने क्लिक कर दिया उसको। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, अब हम इसको व्हाइट है हमको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब इसका दूसरा तरीका है कि हम दूसरा एग्जांपल लें। तो दूसरा एग्जांपल लेने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक और इमेज है हमारे पास में मून डॉट टिप। कमेंट्स तो आप अपने एक्सपेरिमेंट में लिखना, या आपको समझ ना तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैंने रन कर दिया, इस वाले पार्ट को सभी चीजों को रिमूव करने के लिए। अब मेरे पास में क्या है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको रन करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी मून डॉट टीआईएफ एक इनपुट इमेज है, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया है एक कांस्टेंट वैल्यू से जो कि 0.5 है। तो आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आया। यदि 0.5 की जगह 0.8 लेते हैं तब आप इसका प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं क्या आएगा। ये इस तरीके का आ रहा है। 0. यदि हम इसको 1 करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
0.7 करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का इस तरीके से आएगा, और प्रोडक्ट का मैट्रिक्स भी आपको जनरेट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। I am multiply. Now next is I am divide. So divide में भी आप अपना एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं x और y का, जो मैंने आपको पहले बताया है। बस वहाँ पर I am divide करना है, तो आप देख सकते हैं। इस चीज़ को मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ यहाँ एग्जाम्पल में। आपने ये जो एग्जाम्पल लिया ना, I am subtract की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे I am divide। पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास में x की वैल्यू आपको मालूम है, x की वैल्यू आपको मालूम है, y की वैल्यू आपको मालूम है। डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करेंगे 255 को 50 से, तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड 255 205 550, तो क्या होगा आंसर इसका 255 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, so 5.1 5.1 5.1 5.1। तो फ्लोटिंग के लिए हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा उसका 5। ठीक है, आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर। yes sir Okay, so here you have to follow the rule of division which I have covered in the class. Now divide this 100 by 100, तो आपके पास नहीं रहेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेमीकोलन के पहले जो वैल्यू है वो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, दीज आर द 3 वैल्यूज इन द फर्स्ट रो। हाँ, ये जरूर है कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, now this is the first row, again this is the first row and this row, so these are the values। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, आप ये स्टडी कर सकते हैं, है ना। इमेज प्रोसेसिंग टूल में आप इमेज में रेफरेंस में जाएंगे, वहां ये मटेरियल मिल जाएगा। ये आपकी इमेज है, अगेन सेम इमेज दे हैव टेकन, है ना। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, अब एक और बात आती है, मैं फिर इसको एग्जांपल की हेल्प से करता हूँ। यहाँ इसको हम पहले क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं डिवाइड की, तो हम इसको क्या यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और इसको भी हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितने से करना है, इनको 2 से करना। तो पहले अगेन रन दिस वन, यहाँ आप इसको रन करेंगे सेक्शन को, तो आपके पास में ये आपकी इनपुट इमेज आई, इनपुट इमेज जे, दोनों को आपने डिवाइड किया, मतलब पहली इमेज को दूसरी इमेज से आपने डिवाइड किया, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, फिर आपने इस इमेज को फिर डिवाइड किया, आपने आउटपुट इमेज को 2 से, तो आपका आउटपुट ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिवीजन ऑपरेशन। Now we can also understand the complement. ठीक है, so I think it is very simple. Complement आता है आपको? चलो, हमारे पास में जो एग्जांपल है हम उसी की हेल्प से इसको समझते हैं, है ना। ठीक है, हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, किसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे पास में आंसर यही वाला आएगा। तो आप इसको करके इस चीज को समझ सकते हैं। मेरे पास में ये जो जे इमेज है, मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, कर भी दूंगा तो कोई जरूरत नहीं है, उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। आई हैव टेकन इनपुट price.png, so I am read, okay, now k it is equals to complement of I,
मेरे पास जो इमेज राइज है उसको मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, देन आई एम शो दिस के, सो रन दिस सेक्शन, द आउटपुट here. यदि आपको इसको यहाँ ना समझ के यहाँ समझना है आपको, तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। ये पूरा मैं कमेंट ले लेता हूँ। नाउ दिस इज द इमेज आई, दिस इज द इमेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई, दैट इज के। नाउ रन द सेक्शन। आपको दिखाई दे रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अनिकेत कुमार आर्य, अनिकेत, गौरव सिंह पटेल, प्रशांत राज, शिखर वर्मा, तुषार शर्मा, विनायक कुमार, पूजन मिश्रा, क्या बात है, सभी गायब है। रघुवीर, साहिल, शिवांशु, यस सर। शिवांशु, ये 2 इमेज है आपके पास में, देयर आर 2 Yes. इमेज, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इमेज? सर कंप्लीमेंट इमेज है सर, एक दूसरे का कंप्लीमेंट। वो तो यहाँ लिखा हुआ है, बट आपको देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? सर राइस वाइट था तो ब्लैक हो गया सर, बैक। नाउ म्यूट योरसेल्फ। वैष्णवी वर्मा, वैष्णवी वर्मा, नो। पलक चौहान, गौरव। So I think those who are listening me, ओके, उनको ये समझ में आ गया होगा सारी चीजें। यहाँ पर आप देखेंगे, हम कैमरामैन को भी कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है? ये आपने राइस को देख लिया, और मैं यहीं पर कैमरामैन को भी देख लेते हैं, है ना? इसको हमको आई करना पड़ेगा, ठीक है? जे कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई किया, आई एम शो पेयर आई जे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी यहाँ। जब हम लाइव एडिटर यूज नहीं करते हैं, सिंपल एडिटर यूज करते हैं, और हम एक ही फिगर में हम सब फिगर प्लॉट करना चाहते हैं, तो हम सब प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। Am I right? But here, if you want to plot sub figures in a single figure, so you can also use im show pair. ओके, समझ में आ रहा है ना? अब हमें इन दोनों इमेज को एक ही इमेज में शो करना है, ऊपर वाली, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम यहाँ यूज करेंगे। कॉपी पेस्ट करना तो हमको बहुत अच्छे से आता है सभी को, है ना? आता है कि नहीं? Yes, sir. इन शो पेयर किसका करना है, आई का और के का यहाँ पर। सो रिप्लेस दिस जे बाय के। और ये क्यों लिखा है, ये चीज समझना पड़ेगी। तो समझने का सिंपल तरीका है, इसको आप क्लिक करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दिस इज द विजुअलाइजेशन मेथड टू डिस्प्ले द कमांड, ठीक है? कौन सी मेथड? जैसे आपने ब्लेंड का नाम सुना, BLEND, ब्लेंड। अभी बताते हैं आपको, है ना? यदि हम इसको नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ नहीं लिखते हैं तो क्या होता है?
पहले तो हम इसको क्या कमेंट ये आपका इस तरीके का आया है इसमें, है ना। यदि हम इसको कॉमा के बाद में यदि हम ये लिखते हैं ऐसा, तो क्या इफेक्ट आता है ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये एक ही पहली इमेज आपकी लेफ्ट में आएगी, सेकंड इमेज आपकी राइट में आएगी। सो अभी हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे कि मेथड का मतलब क्या है। तो यहाँ ब्लेंड मेथड की यदि हम बात करेंगे तो ब्लेंड में यह आएगा। आपको पता है ब्लेंडिंग क्या होती है? डू यू नो? No, sir. सो जैसे कलर्स ब्लेंड होते हैं तो मतलब मिक्स होना। This is the application part which I will explain to you. Blending. Mix a substance with another substance so that they combine together. ठीक है, समझ में आया ना कि क्या है? दो चीजों को मिला के बनाने की चीज है ब्लेंडिंग ऑफ जो कितना अच्छा है हमारे पास में गूगल सर्च करने के लिए। अब आपको मालूम है क्या होता है होगा ब्लेंडिंग ऑफ इमेजेस? देखना चाहते हो आप? So this is the effect. Now see this image. It is a combination of images. Okay, so this is the blending. क्लियर है या नहीं ये जो मैं बोल रहा हूँ चीज? आपने देखा होगा ना, एक इमेज रहती है क्या सामने दिखाई दे रही है? देखिए दिस इज द यू कैन सी आपका सी पार्ट है और यहाँ पर एक गर्ल का फेस है। तो ब्लेंडिंग मीन्स आप दो से ज्यादा इमेजेस को मिला के बना रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं इसका एग्जांपल कहाँ से दूं? ये शायद क्लियर हो रहा होगा, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ना। This is the blending. Now this is again. Hello. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So this is the blending of images. Okay. मतलब आप एक इमेज के साथ में दूसरी इमेज को यूज कर रहे हैं एक नई इमेज बनाने के लिए। यहाँ पर ये गर्ल है और यहाँ पर इसमें आपका देखेंगे तो दूसरा इमेज रेनबो भी है इसमें। तो समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है। अब यदि आप यहाँ चेक बोर्ड की बात करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द हियर वे कि आप उसे किस तरीके से पेयर करना चाहते हैं। खैर हम उसको नहीं, हम तो सिर्फ सिंपल की बात कर रहे हैं अभी तो फिलहाल में कि आप एक साथ फॉल्स कलर की बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये फॉल्स कलर में आ जाएगा आपका। आपको कलर्स का भी बताना है कि कितने तरीके के कलर्स होते हैं, कलर स्पेस होते हैं, कलर मॉडल्स होते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ ये जो बताना था वो ये था कि नया जो है आपका मैटलैब उसमें उन्होंने इम शो पेयर के नाम से इस तरीके से ऐड कर दिया है कि आप दो इमेज को एक साथ शो कर सकते हैं। ओके, तो आपका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। This
So this you can take the complement of this here. आपको मालूम है कि हमारे पास में यदि ब्लैक है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, व्हाइट या 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं 1। लेकिन यदि आपके पास में कोई कलर्ड इमेज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इस तरीके से आपके पास में आएगा। जैसे कि आपके पास में एक इमेज है, ठीक है, ये आपका इमेज आएगा, इसको रन करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट यदि आप देखेंगे तो ये आपके साथ में ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सो जस्ट यू हैव टू यूज द फंक्शन आई एम कॉम्प्लीमेंट, ओके, इन कॉम्प्लीमेंट। किसका करना है? आरजीबी का। आरजीबी क्या है? आपका इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज को आपने क्या किया है? आई एम रीड से लोड किया है। नाम क्या है? दिस वन। क्या है उसका एक्सटेंशन? .jpg। आपने इसको शो कर दिया, ठीक है। पेयर में आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ आप यूज कर लीजिए, ठीक है। पहला नाम क्या है इमेज का? आरजीबी, तो यहाँ आई की जगह आरजीबी आ जाएगा। दूसरा इमेज है, उसका नाम क्या है आपका? सी, तो यहाँ पर आप सी टाइप कर दीजिए और आप इसको रन कर दीजिए, ओके। यस, क्लियर है? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, है ना, पूछना ही चाहिए यदि डाउट है, नहीं तो वो तो डाउट बना रहता है हमेशा के लिए, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं ये पीडीएफ की हेल्प से ही आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि आपके पास में स्टडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल रहती है, ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल रहती है, ऑलरेडी उनके जो भी रेफरेंस या यूजर या मैनुअल्स जो रहते हैं ना, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उस किसी की बिना हेल्प के भी आप ये स्टडी खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो हम अब कंप्लीट कवर कर चुके हैं ये वाला पार्ट। कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, हालांकि कॉम्प्लीमेंट मैंने क्लास में कवर नहीं किया है। सो कॉम्प्लीमेंट हो गया है, क्या बचा है इसमें? डिवाइड हो गया, ऐड हो गया है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ओके। सो द अरिथमेटिक ऑपरेशन इज ओवर। लास्ट में भी मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ और लैब में भी आपको इसके पहले की लैब में भी बता चुका हूँ और आज भी बता चुका हूँ। सो मेरी तरफ से ये टास्क कंप्लीट है। अब आपके लिए जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसका प्रैक्टिकल का जो आप फाइल बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट किए ना, ये भी आपको यूज करना है। इसकी रिकॉर्डिंग है, आप चाहे तो देख सकते हैं लेक्चर की, मैंने इस लैब की भी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। सो आवर अरिथमेटिक ऑपरेशन पार्ट इज ओवर नाउ। अब किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो फ्रीली आप पूछ सकते हैं। सो ये वाला पीडीएफ आप शेयर कर देंगे टीम्स पे? अभी कर देता हूँ मैं, है ना। आई रीड द रेफरेंस, रीड इट, इस वन है ना। शेयर कैसे करेंगे? और ये साइज पर डिपेंड करता है। मैं इसी चैट बॉक्स में शेयर कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, ये अटैच किया, अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर, जुलाई 20 मटेरियल मैथ
नेटवर्क से मैं कौन सा ओपन किया है अभी मैंने, रीड इट, ठीक, ये वाला सिलेक्ट किया। वन 120 MB। ठीक है, तो ये मैंने पोस्ट कर दिया है। सॉरी, so I have posted the material. It is very useful. एक्चुअली इसमें इमेज प्रोसेसिंग का बहुत सारा दिया हुआ है। ये जो इमेज प्रोसेसिंग का मैं आपको बताऊं, ये इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स है और ये यूजर गाइड है कैसे आपको यूज करना है। लेकिन इस यूजर गाइड में या इमेज प्रोसेसिंग के टूल बॉक्स में जिन लोगों के पेपर्स की हेल्प से ये अपना मैटलैब या इसका मटेरियल डिजाइन किया है, तो उसके लिए इन्होंने दिया है इमेज प्रोसेसिंग टूल इमेजेस रेफरेंस। ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी ऐसा नहीं है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें आप जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, आप देखेंगे सारी चीजें दी हुई हैं, दे हैव गिवन। इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप लोग कौन से ईयर के बच्चे हैं? सर थर्ड ईयर सेमेस्टर। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे होंगे, है ना? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का भी इसमें दिया हुआ है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसका यूज करके आप कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चे कर रहे हैं, मेरे साथ में भी काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने इंटरेस्ट लिया था, वो चाहे तो मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिक जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इमेज प्रोसेसिंग में। आप अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके आप अपनी कोई भी प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगा के डिटेक्शन या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मुझे भी याद नहीं है किस PDF में है मटेरियल। जैसे इन्होंने MRI डेटा पर यूज किया है कुछ, है ना?
जैसा मैंने अभी आपको और बताया था, कुछ फंक्शंस हैं जो इनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको प्लॉट करना है सपोज रेड ग्रीन या ब्लू कलर का हिस्टोग्राम, अलग अलग इमेजेस का, तो आप ये प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है ना आपको? हेलो, ये दिखाई दे रहा है आपको? Yes. ये विजुअल? हेलो, आप लोग बोलते नहीं हैं स्टूडेंट यार। यदि एक टीचर इसमें इंटरेस्ट के साथ में है, सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ ये आपके पास में एक इनपुट इमेज है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास इनपुट इमेज है। तो ये आपने मान लीजिए एक फोटो कैप्चर किया हुआ है। हेलो, एम ऑडिबल? यस। तो अभी क्या होता है कि आप इस कंप्लीट इमेज को प्रोसेस करते हो, और इस कंप्लीट इमेज को जब प्रोसेस करते हो तो इसमें ये जो स्क्रीन का कलर लेफ्ट साइड में है या अपवर्ड डायरेक्शन में है या राइट में है या नीचे है, तो ये तो अनवांटेड थिंग हुई ना हमारे लिए, है ना? तो हम क्या करेंगे कि इसमें से हम अपना वो वाला पार्ट जो हमारे लिए जरूरी है उसको हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये वाला पार्ट, और बाकी जो आपका ब्लैक है वो मतलब 0 रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पार्ट को हम फर्दर यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से फॉर द मोर डीपर एनालिसिस। ओके, अब वो डीपर एनालिसिस किस चीज के लिए आप करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आप पर। इसी चीज को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर, तो मैंने देखिए अलग अलग एनालिसिस करके मैं इस चीज को यहाँ पर लाया हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ये सब चीजें? हेलो, यस सर। Yes. है ना? ये वही है, बट मैंने इसको अलग तरीके से एनालिसिस किया है। पहला अलग तरीके से है, दूसरा ये अलग तरीके से मैंने एनालिसिस किया है ना, ये अलग तरीके से एनालिसिस किया मैंने। अब मैं किस एनालिसिस में मुझे बेटर चीज मिलेगी, इस एनालिसिस का करने से मेरे को फायदा रहेगा, उस चीज को मैं फर्दर यूज करूंगा, और इसी के बेसिस पर आप बोलते हैं और इसी के बेसिस पर आप इस चीज का एनालिसिस कर पाते हैं कि आपको फ्यूचर में किस फील्ड में यदि कोई डिसीज है या कोई आपका डिटेक्शन करना है या किसी पर्टिकुलर एरिया का आपको एनालिसिस करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च। तो आप इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, है ना? अदरवाइज मेरी एंड पर मैंने जो बताना था बता दिया है। सपोज आपको ये फल है, इसमें देखना है कि ये कहीं कोई फल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खराब तो नहीं हुआ है,
तो उस पार्टिकुलर एरिया को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे रीजन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करने की मेथड है। दिखाई दे रहा है आपको ये? आप वहाँ पर कोई भी कुछ भी बना सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं, एलिप्स भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर दिया जो आपको काम है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या? Yes, any student in the class? No, sir. नो सर। So आपको अभी तक मैटलैब के द्वारा इमेज प्रोसेसिंग में क्या समझ में आया? क्या इसका स्कोप बेटर है, फ्यूचर बेटर है, क्या ये अभी प्रेजेंट में यूज हो रहा है, क्या फ्यूचर में इसका स्कोप बढ़ेगा या कम होगा? यस, कौन बताएगा भाई? सो नेक्स्ट स्टेप में आपको 5 एक्सपेरिमेंट सबमिट करना है, उसमें इंक्लूड एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, जो मैंने बताया ये सारी चीजें होना चाहिए उसमें। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। सभी को करना है, मीन्स करना है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं है। सर इन चारों को चैट बॉक्स में सबमिट करना है? नहीं, ये आपको एक्सपेरिमेंट जो आपकी फाइल रहेगी, जो अभी मैंने आपको बताई हुई है ना? Yes. एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था और मैंने उसको शेयर भी किए हुए शायद कुछ एक टेबल, है ना? वो होंगे शायद चैट बॉक्स में, आप देखना। तो ये सारी चीजें मुझे फाइल के फॉर्म में चाहिए इन अ सिस्टमैटिक वे। टाइटल, एक्सपेरिमेंट नंबर रहेगा, ऑब्जेक्ट या एम आपका जो भी है, आपका एक्सपेरिमेंट का नाम रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आप लिख सकते हैं, मैटलैब की रिक्वायरमेंट रहेगी, थ्योरी क्या रहेगी उसमें, आप उसको एक्सप्लेन करोगे इन शॉर्ट, नॉट इन डिटेल। उसके बाद में आपका लिखेंगे मैटलैब प्रोग्राम को, उसको किस तरीके से है। आधा अधूरा नहीं लिखना है, आप लिखेंगे तो पूरा आपको आना चाहिए। ये यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कोड ले लिया है, यहाँ पर आपको कमेंट भी लिखना है परसेंट लगा कर ये। ठीक है, कुछ भी जो भी है आपको यहाँ पर टाइप करते रहेंगे। ठीक है, हर लाइन में मुझे कमेंट चाहिए। आई एम शो RGB क्या है? आई डोंट नो, यू नो, आई डोंट नो। ठीक है, सो यू हैव टू टाइप हियर आई एम शो, है ना? हम जो भी आपकी RGB इमेज है, इनपुट इमेज है, उसको शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कोड हो जाएगा। कोड को जब आप रन करोगे तो उसका जो आउटपुट इमेज है वो भी आनी चाहिए। आउटपुट इमेज मैंने आपको यहाँ शो की है, ये सिंपल, लेकिन इसके पहले की जो लैब्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही फिगर के अंदर आप किस तरीके से सब फिगर प्लॉट कर सकते हैं। आपको वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। ठीक है, उसी फॉर्मेट में चाहिए मेरे को। सभी इमेज जो भी आपकी सब इमेज है उनकी सब हेडलाइन भी चाहिए और मेन हेडलाइन भी चाहिए फिगर की। उसके बाद में लास्ट में आपका रहेगा कमेंट्स, और उसके बाद में हर उसमें एक ट्यूटोरियल होना चाहिए लैब में एक्सपेरिमेंट के नीचे। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया कि टेक योर वन इमेज, वन फोटो एंड इम्प्लीमेंट द ऑपरेशन। ओके, नाउ यू कैन आल्सो परफॉर्म द arithmetic operation on your image, which you may take in the two different conditions. ठीक है।
Am I audible? हेलो। Yes, sir. अरे भाई मैं कितनी देर से कुछ बोल रहा हूँ आपको, बट आप लोगों ने किसी ने बोला भी नहीं कि सर आप म्यूट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ वैसे ये लैब जो है ना आपका काम है वो आपको परफॉर्म करना है इसमें एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो आप अपना ये परफॉर्म कीजिए जो भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है ना। तो कंप्लीट फाइल बनाइए अप टू अर्थमेटिक ऑपरेशन तक। इसमें कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं पूछना है तो आप लीव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस एक्सपेरिमेंट कीजिए, फाइल बनाइए। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर।